what we will be doing as your last class for your bachelor's is that we'll be covering this particular reading, Globalization: A Paradox, a book written by Danny Roderick. And we are going to do a particular chapter which, according to me, is one of the most important ones for your course, along with Raghuram Rajan's article or the preface of the book, the introduction of the book. So these two articles, I believe, are the important ones. You can also go through this particular article, which is Understanding Poverty, and it gives you a reflection on how poverty has impacted different sects of the society. So both kinds of views are there: pro globalization and anti globalization. What is the impact of income, and what is the impact on the societies in general? So you can go through that if if you have not read it. But this is going to be my focus for this particular session, where I will try to give you a sense of how global trade architecture has evolved during last few years, especially after the Second World War. नाउ ये जो रीडिंग है ये हमें बेसिकली बता रही है कि आपका जो ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ओरिजिनेट करने के लिए दो इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है. एक है जॉन मेयार्ड कीन्स एंड द अदर वाज वाइट. दीज टू पीपल, Keynes was a British economist, and White was a US-based economist, and these two people kind of collaborated together, and they developed this multilateral trade system, which was ultimately called as the Bretton Woods system. इनको कई बार हम ब्रेटन वुड्स को ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक बीइंग दी टू ब्रेटन वुड ट्विंस. सो ये ब्रेटन वुड सिस्टम आया, मल्टीलेटरल सिस्टम आया. व्हाट इज दिस मल्टीलेटरल सिस्टम? इन अ मल्टीलेटरल सिस्टम rules of trade are defined in a consensus way rather than arbitrary way. तो ad hoc तरीके से rules नहीं defined होते, एक consensual basis के ऊपर आपके सारे rules decide होते हैं. So this architecture was developed under Bretton Woods. इसके अंदर 3 institutions आए थे. We'll be talking about one institution in particular. World Bank आया था, जिसका उस टाइम पे उसका जो main constituent है वो IBRF था, International Bank for Reconstruction and Finance. So that was one. IMF was the other, and the third was GATT. GATT का पर कोई structure नहीं था, but this was the trading counterpart of the overall multilateral trade system that was being developed. And उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, as an institution 1994 के अंदर this GATT was replaced by WTO. Now there is this inherent difference between, this was replaced by WTO. Now there is an inherent difference between GATT and WTO. GATT जो था वो national priorities को supremacy देता था. So इंटरनेशनल ट्रेड के को फैसिलिटेट करना ऑब्जेक्टिव दोनों का है, बट यहाँ पर जो प्रेसिडेंस था वो था नेशनल पॉलिसीज़ को, कि नेशनल जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, नेशनल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको देखते हुए जो पॉलिसीज़ जो आपको लगता है कि आप पॉलिसीज़ फॉलो कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, दैट यू कैन इम्प्लीमेंट. सो इंटरनेशनल ट्रेड वॉज सीन एंड गैट वॉज सीन एज अ फैसिलिटेटर फॉर इम्प्रूविंग डोमेस्टिक कंडीशंस और डोमेस्टिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए वो था. वेयर एज WTO was seen as an evolutionary counterpart of GATT, where यहाँ पर देखा जा रहा था कि ये जो है यहाँ पर ग्लोबल जो सिस्टम है, जो ग्लोबल सिस्टम आएगा वो ओवर रीचिंग होगा, और नेशनल सिस्टम्स को आप जो भी आपके डोमेस्टिक सिस्टम्स होंगे, डोमेस्टिक लॉज होंगे, उनको ग्लोबल लॉज के हिसाब से मोल्ड होना होगा. इट वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट इन केस ऑफ GATT. So to give you a summary of this, GATT was much more was जो developing nations है और जो developed nations है, both in this case both the countries, both type of countries, उनकी domestic policies and domestic जो भी उनका architecture है, economic architecture है, उसका ध्यान रखते हुए policies बना रहे थे. और उनको हर कंट्री का राइट था कि वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को परस्यू करे, एंड इफ दे वांट टू टेक हेल्प ऑफ GATT फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, दे कैन डू सो. वेयर एज यहाँ पर मच मोर
होमोजेनाइजेशन हो गया ट्रेड का, यहाँ पर हेट्रोजेनिटी चल रही थी ट्रेड की, यहाँ पर होमोजेनाइजेशन हो गया, यहाँ पर ग्लोबल जो सिस्टम है, जो WTO है, वो रूल्स बनाएगा और बाकी सारी कंट्रीज़ को अपने ये वाले जितने भी डोमेस्टिक रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, हो जैसे हमारा एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स करके, जिसके अंदर कॉपी राइट्स आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, यू हैव कॉपी राइट्स इसके अंदर, यू हैव पेटेंट्स इसके अंदर. तो हर कंट्री को अपने जो कॉपीराइट्स एक्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाकी सारे एक्ट्स हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ WTO. सो यहाँ पर होमोजेनाइजेशन होना शुरू हो गया. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एक one, it talks about this historical aspect, that how this trade model developed. The other thing it talks about is what is the impact of GATT and WTO, especially WTO जिसके अंदर हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी के ऊपर, एंड व्हाट कैन बी डन अगर हमें ये ट्रेड पॉलिसीज आगे लेके जानी है, तो व्हाट कैन बी दी काइंड ऑफ insurance or fallback mechanism that can be built into it, so that there are a large section of people, especially अगर आप पुअर लोगों को देखो, उनको हो सकता है एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट जो MSME सेक्टर्स हों, MSME जो सेक्टर हों, उनको एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है जो पुअर वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े. सो हाउ डू यू सेव गार्ड दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, हाउ डू यू सेव गार्ड दीज पर्टिकुलर पीपल. तो यहाँ पर बात होती है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से बिल्ट इन होने चाहिए, सो दैट इन जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनका ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, देयर इनकम इज समहाउ सेफ गार्डेड, दे हैव दीज फॉल बैक ऑप्शंस. So some kind of domestic measures should be provided. So all of this debate is being built there, and 2-3 economists, for example पॉल क्रुगमैन के बारे का डिस्कशन, जॉन मैड कीन्स का डिस्कशन, एंड देन एंड में भगवती का भी डिस्कशन है, दैट व्हाट ऑल पीपल से हु आर प्रो ट्रेड एंड एंटी ट्रेड. एंड कुछ लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल कीन्स हैं, या यू हैव दिस गाय क्रुगमैन, हु आर initially very pro trade, but later on they came to be a pacifist, in the sense they said that okay, there are certain national objectives that we also need to achieve. So therefore they turned their way around ki acha, all of globalization is not well, we probably need to have some kind of fallback mechanism, some kind of checks and balances, so that the people who lose their livelihood, or people who are at the wrong end of the globalization, are at least safeguarded. So this is the essence of this particular article. Now in general जो हमारी ट्रेड थ्योरीज हैं, और ये बात आपकी दूसरे वाले आर्टिकल के अंदर भी बताई हुई है. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम ए प्रीवियस सेमेस्टर, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, विच वाज स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम. ठीक है, स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा. This is an extension of the comparative advantage theory and the Heckscher-Ohlin theorem. Heckscher-Ohlin theorem के बाद ये theorem आती थी, Stolper-Samuelson theorem, and it talks about कि अगर international trade होगा, Heckscher-Ohlin कहता था कि कौन से नेशन को किस में करना चाहिए. इंडिया जैसे नेशन को, लेबर अबंडेंट कंट्री को लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने चाहिए. US जैसी कंट्री को, विच इज़ अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, शुड प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज, एंड दीज कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन दिस कमोडिटीज एंड देन एक्सचेंज. Stolper-Samuelson theorem takes it a step further, and it kind of makes an implication of international trade on what will happen to your wages and your returns to capital. तो फैक्टर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम बता रहा था. और स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम ये बेसिकली बताता है कि सिट्रस पैरेबस, व्हाट विल हैपन इज दैट इन अ लेबर अबंडेंट कंट्री वेजेस बढ़नी चाहिए, और in a capital abundant country because of international trade return on capital बढ़ना चाहिए. But what we find, and what is also mentioned in the previous reading, is that this is not always true, that ceteris paribus is not always true in economics. There are things which happen. For example, हो सकता है कि and this is also seen in case of international trade, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद या फिर ट्रेड ओपन होने के बाद वेज इनइक्वालिटी कई बार और बढ़ जाती है.
and as this can be seen in case of India as well, and other parts of the world, because globalization, for example, कोई MNC आ रही है तो वो MNC जो है वो अपनी रेप्यूटेशन लेके आ रही है, इट हैज़ अ रेप्यूटेशन अलॉन्ग विद इट. तो अगर एप्पल इंडिया में अपना प्रोडक्ट अगर बनाना चाह रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो इंफीरियर कमोडिटी बनाना शुरू कर देगा, बिकॉज एप्पल हैज़ टू लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड वाइड कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं. Those will last 4-5 years and they speak for themselves. So these MNCs or globalization के बाद जो companies आती हैं, they have a huge reputation on scale, and because they have a huge reputation at scale, they cannot just because it is a cheaper country to source, they cannot loosen up their standards. So because of this, what they will also do is they will hire the best of people from India, the best of engineers, the best of technicians, और वो लोग होंगे जो ज़्यादा skilled होंगे. So again, what will happen because of globalization is that the skilled work set, the people who have skills, their wages will start increasing. So in skill intensive लोगों की wages बढ़ गई as compared to जो non skilled लोग थे. So in general, what we can observe and what we have seen as an observation across countries is that it might lead to wage inequality, and in general हम कहते हैं कि अच्छा, if the gainers are huge as compared to the losers, then there should be some way to compensate so that हम एक better outcome पे आ जाए. But the problem is to identify the gainer. So आप identify कर दोगे, how will you tax them, how will you take out income from them, and how will you redistribute to the losers? That is a political economic challenge that is there in these countries. So in all of this context, this particular reading is or this particular book has been written. Let's go through this particular chapter now. So the initial part talks about how what was going through the minds of White and Keynes, and जब उन्होंने ये experimentation शुरू किया, and traditionally ये both Keynes तो hardcore, he was pro trade person, but after the war he realized कि everyone is looking inwards. In that scenario, तो he was also a realist. He realized कि अगर मैं यहाँ पर free trade promote करूँगा जबकि सारी countries अभी war से निकली हैं, तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा. So instead of that, what he and White came up with was that a kind of a compromise. They also shifted their policies and said that okay, let's come to a model which everyone can accept, where domestic priorities will be given. ठीक है, countries will not feel that their domestic sovereignty is being challenged. आज की डेट के अंदर अगर हमारा कोई IPR का एक्ट होता है तो हमें लगता है कि यार हमारी डोमेस्टिक सोवरेनिटी छिन रही है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंसर का ड्रग है, दिस इज़ अ वेरी फेमस केस ऑफ 2010 या 13 का केस है कि इंडिया ने एक कैंसर ड्रग है जिसकी कॉस्ट पड़ रही थी 2.5 लाख रुपये पर महीना. उस कैंसर ड्रग का एक चीपर वर्जन इंडिया की कंपनी 8,000 रुपीज़ पर मंथ में बेच रही थी. दिस पर्टिकुलर कंपनी US की कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी को कोर्ट्स में लेके चला गया. बट फिर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रूल किया कि नहीं भैया, हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट, हमारा पब्लिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस पर्टिकुलर अमाउंट. सो देयर फॉर 8,000 रुपीज़ का उनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोला गया कि यू कैन चार्ज दिस एंड यू कैन गिव सम काइंड ऑफ रॉयल्टी टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड ग्लेविक करके एक कंपनी थी. सो अगेन यहाँ पर चैलेंजेस आ जाते हैं. तो व्हाट दिस शोज इज दैट क्योंकि रूल्स होमोजेनाइज हो गए हैं, आपको ग्लोबल रूल्स फॉलो करने हैं, इसलिए पीपल फील चैलेंज कि अच्छा, हमारी खुद की कोई से नहीं है, हमारे खुद के पार्लियामेंट की कोई से नहीं है, हमें बाहर के रूल्स और जो WTO रूल सेट कर रहा है हमें वो फॉलो करने पड़ रहे हैं. सो दैट वाज वन ऑफ द इशूज जो वी विल टॉक अबाउट. Now coming to this Bretton Woods system, so Bretton Woods के अंदर Keynes and White ने ये philosophy create करी. They created these two institutions which are also called as the Bretton Woods twins. Now the agreement that emerged from Bretton Woods transcended narrow national interest and did much more than buttress the American hegemony. तो basically White was representing कि अच्छा कैसे US के interest निकल खूब बढ़े, और Keynes क्योंकि he was a Briton, he was trying to protect the interest of British. तो बट अल्टीमेटली जो ब्रेटन वुड्स बना उसके अंदर
जो हमने जो प्रोग्रेस, जो हमने जिस तरीके का इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसमें हम ये नहीं कह रहे, उसमें ये फोकस नहीं था कि अमेरिकन को प्रमोट करना है। उसमें फोकस था कि डोमेस्टिक कंट्रीज अपनी पॉलिसीज फॉलो कर सकती हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कैन वी रीच टू अ बेटर लेवल ऑफ आउटकम इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Yes, Shruti, I'll be uploading this on YouTube as well. I'm recording it. I'll put it. Then there was this. So the delicate compromise that was reached in this particular regime was that international discipline and progress towards liberalization to ensure worldwide commerce. At the same point in time, this is very important. Give plenty space for governments to respond to social economic needs at home. So ये आपकी सबसे क्रूशल लाइन है बिहाइंड गैट. ये बेसिक फ्रेमवर्क है बिहाइंड गैट. इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वुड हैव टू बी सबसर्विएंट टू डोमेस्टिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स. आपके जो कंट्री के खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पावर्टी रिमूव करना, लोगों की इनकम इंक्रीज करना, वो सारे जो आपके, अगर आपको वेलफेयर करना है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट जो है क्लियर कट सब्सिडीज़ नहीं दे सकती अपने एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि वो WTO के अगेंस्ट है. इंडियन गवर्नमेंट जो है फ्री में सब्सिडीज़ नहीं दे सकती अपने फार्मर्स को, और फिर वो जो फूड ग्रेन प्रोक्योर करा है उसको मार्केट में नहीं बेच सकती हैं, बिकॉज वो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अगेंस्ट हैं. तो ये सारे जो रेगुलेशंस हैं ये अब होमोजेनाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ WTO. गैट में ये सारी चीज़ें थी, गैट में एग्रीकल्चर की बात ही नहीं कर रखी थी, गैट में सर्विसेज की बात ही नहीं कर रखी थी. ये सारी की सारी चीज़ें आई हैं, ट्रिप्स वाली जो चीज़ें आई हैं ये सारी WTO के अंदर आई हैं. So there was a lot of space given to domestic policy manipulation, and international जो है उसमें सिर्फ आपको कोऑपरेशन करना था, एंड जहाँ तक आपको लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमें फ़ायदा दे रहा है वो आप कर सकते हो. सो दिस न्यू सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, जिसमें रूल सेटिंग थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द एसेंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है कि रूल जो बनाएगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिव रूल होगा. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स गिवन बाय गैट वाज MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, जिसमें आप जो बेस्ट टैरिफ दे रहे हो अपने सबसे क्लोजेस्ट नेशन को, वो आपको बाकी सबको भी देने हैं. सो इट काइंड ऑफ अगेन होमोजेनाइज, इट काइंड ऑफ प्रमोट्स ट्रेड. At the same point of time, it does not restrict you to follow some kind of global rules. Multilateralism meant that the rule enforcement and belief system would work henceforth through international institutions like IMF, World Bank and GATT. Multilateralism also, अब multilateralism का क्या है, क्योंकि यहाँ पर representation होगी, ठीक है. अब यहाँ पर एक बॉडी बनेगी जिसके अंदर सारी कंट्रीज आएंगी, ठीक है. पहले क्या होता था, पहले अगर आप मर्केंटलिस्ट वाला सिस्टम लो या फिर कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम लो तो उसके अंदर ब्रिटिश रूलर्स हैं या अमेरिकन रूलर्स हैं. अब यहाँ पर जब आपने गैट बनाया है तो गैट के अंदर आपको स्मॉल नेशंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिग नेशंस भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इट इज़ गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू एवरीवन फ्रॉम द स्मॉल एंड पुअर नेशंस कि वहाँ पर जाके अपनी बात कह सकें. So they created this kind of a multilateral system which gave voice to the interest or the voice to the small and poorer nations as well. I mean, and GATT to its extent, GATT के बहुत सारे negatives भी हैं कि GATT जो है उसने एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ काम नहीं किया, उसने सर्विसेज के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, उसने IPR के ऊपर कोई काम नहीं किया. बहुत सारी चीज़ों में गैट के ऊपर अग्रीमेंट नहीं बन पाया. ऑल राइट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू सी द पीरियड ऑफ गैट, सबसे तेज़ी से वर्ल्ड ट्रेड ग्रो किया है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ गैट, ठीक है, क्योंकि आपने फुल फ्रीडम दे रखी है नेशंस को कि जैसा आपको ट्रेड करना वैसा आप कर सकते हो. सो इफ़ यू सी दैट गैट मैनेज टू एलिमिनेट अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस and reduce tariffs in the post after the war. And if you see, world trade had grown between 7% between 1948 and 1990, and output बहुत तेज़ी से grow किया था in this particular period. So it was not as such, I mean, वो जो hyper globalization की बात है वो वहाँ यहाँ पर गैट के अंदर नहीं थी. ये जो hyper globalization की बात है, and especially when you talk about globalization, जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन दैट वी सी नाउ इज बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस.
और ये जो फाइनेंस वाली चीज़ आई है 1990s के बाद आई है. रिमेंबर आप प्रीवियस रीडिंग ऑल्सो हमने बताया था रघुराम राजन में कि 1990s के बाद ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो ट्रेड के अलावा ये जो फाइनेंस में हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. उसकी वजह से कई बार इकोनॉमीज रिवाइव नहीं कर पा रही, जॉब्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से वापस नहीं आ पा रही. सो all you need to understand is there was this globalization that started happening after 1980s in US, and they picked up after 1990s after the setting up of WTO as well. So the goal was freer trade in some areas, not free trade in all. This was the objective of GATT. So the objective of GATT was much more narrow, and because it was a narrow objective, it was easy to achieve whatever it wanted to achieve as compared to say anything as compared to say WTO, which had an omnibus aim कि अच्छा हम हर चीज़ को क्या कहते हैं होमोजेनाइज करेंगे. हम एग्रीकल्चर के अंदर भी होमोजेनाइज करेंगे, हम सर्विसेज में भी करेंगे, हम IPR के अंदर भी करेंगे, हम इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, हम क्वालिटी ऑफ फूड जैसे SPS होता है, तो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी जो प्रोविजंस है वो उसको भी होमोजेनाइज करेंगे. सो अचीविंग ऑल ऑफ दिस होमोजेनिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑपरेटिंग. उनको एक सिस्टम एक यार्डस्टिक पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी वजह से डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाएंगे. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यहाँ पर एक तो जैसे आई टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर वॉज केप्ट आउट ऑफ द गैट नेगोशिएशन, सर्विसेज वॉज ऑल्सो आउट ऑफ द नेगोशिएशन. देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, जिसमें कोटास गिवन होते थे कि आप कितने कंट्री से कितना आप इम्पोर्ट कर सकते हो ऑफ फाइबर्स. सो ऑल ऑफ दिस वॉज देयर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम one of the things about GATT was कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई दो नेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती कि अच्छा यार ठीक है, ये हमारी क्या कहते हैं नेगोशिएशन जो है इट इज़ शोन कि जो आपने स्टेप लिया है वो एंटी मतलब ट्रेड के अगेंस्ट है, एंटी ट्रेड है. तो उस चीज़ को अगर इन्फोर्स कराना होता था तो पूरे के पूरे सारे के सारे गैट मेंबर्स को वोट करना पड़ता था. अगर यूनानिमस वोट ना हो तो फिर दिस रूलिंग विल नॉट बी इन्फोर्स्ड. तो इन अ सेंस सपोज इंडिया और जापान का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इंडिया और जापान का वैसे भी स्टील को लेके काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स WTO में हैं. तो सपोज गैट में कोई डिस्प्यूट है, तो अगर रूलिंग आई गैट के जजेस की कि जापान इज़ करेक्ट एंड इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक नहीं है, तो फॉर दिस डिसीजन टू बी इन्फोर्स्ड गैट के सारे मेंबर्स बैठेंगे एंड सबको वोट करना पड़ेगा कि हाँ जापान की जो रूलिंग है, दिस रूलिंग इज़ इन फेवर ऑफ जापान एंड अगेंस्ट इंडिया. सो इंडिया अभी तो यहाँ बैठा हुआ है, अगर इंडिया वोट्स की नहीं वी आर करेक्ट तो ये रूलिंग मानी नहीं जाएगी. सो इन अ सेंस दैट यूनानिमस वोटिंग जो थी टू बी इन्फोर्सेबल, वो कभी इस तरीके से बिल्ट इन थी कि कोई भी डिस्प्यूट जो है कभी रिजॉल्व हो ही नहीं सकता. एज अगेंस्ट WTO में हम देखेंगे, WTO में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, अगर WTO में डिस्प्यूट हो जाता है दो कंट्रीज़ में, इंडिया और जापान में कोई डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने जापान के फेवर में रूल कर दिया, तो अनलेस सारी की सारी कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट हो जाएं तब तक आपको ये जो रूलिंग है माननी पड़ेगी. सो इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस. यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक सोवेरेनिटी ख़त्म हो गई. तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर इंडिया का कह दे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो भी आपको WTO की चीज़ माननी पड़ेगी. बट अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अपनी रूलिंग देता रहता है, कोई उसकी बात मानता ही नहीं है. सो दिस वॉज आई वॉज टॉकिंग. द ओनली कैच इज द अप्रूवल ऑफ द पैनल रिक्वायर्ड यूनानिमस डिसीजन विच वुड नेवर बी देयर. गैट के जो रूल्स थे वो जो जितनी भी उसके पॉलिसीज़ थी वो एट टाइम्स अनइन्फोर्सिएबल थी. एंड दिस मेड अ मच मोर अट्रैक्टिव वर्जन कि अच्छा चलो ठीक है, हम एक नया अट्रैक्टिव वर्जन ले आते हैं. एंड WTO बिकेम एज द अट्रैक्टिव वर्जन ऑफ गैट, जिसमें हमने कहा कि जो भी डेफिशिएंसीज हैं गैट की वो हम पूरी कर देंगे WTO से. सो गैट मे नॉट हैव was not aimed at minimizing economic entanglements among nations. That was not the role of GATT. It was designed to leave each trading nation room to pursue its social and economic objectives
relatively unencumbered external constraints. So, and when trade threatened domestic distributional bargains, trade would give. तो दैट मीन्स आपका जो ट्रेड है वो सबसर्वियंट है. पहले आपको अपने कंट्री देखना है, कंट्री के लोग देखने हैं, कंट्री की पॉलिसीज देखनी है, कंट्री का वेलफेयर देखना है, उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा गैट क्या कह रहा है. And this was called by one of the economists as compromise of embedded liberalism. So again, GATT's purpose was never to maximize free trade. It was to achieve maximum amount of trade compatible with different nations doing their own things. So remember this philosophy behind GATT. Again, in reality, trade remained free only where it posed little challenges to domestic institution, distributional preferences or values. Then what had happened in 1995? People wanted more. People wanted that, or these classical economists wanted that we have achieved a lot under GATT. Let's try to achieve even more. Let's try to achieve the best possible model. जो एडम स्मिथ का बेसिकली था कि कंप्लीट फ्री ट्रेड वगैरह जो चीज़ें थी वो क्लासिकल मॉडल अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो वो जो इंटीग्रेशन था, वो जो स्ट्राइविंग फॉर इंटीग्रेशन था, डीप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑल द कंट्रीज, दैट वाज एनविसाज्ड अंडर WTO. सो WTO अब गैट का जो लास्ट राउंड था नेगोशिएशन का, गैट के अंदर कल 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुए थे. उसमें जो लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू हुआ था 1989 में शायद से, उसमें उसको यूरोगे राउंड बोलते हैं. ठीक है, अब वहाँ पर बात होनी शुरू हुई कि हाउ डू वी कम अप विद अ फ्रेशर एंड अ न्यूअर वर्ल्ड ट्रेड आर्किटेक्चर. और उसमें फिर बात हुई कि दे वांटेड और especially after the onset of financial globalization in 1990s. Remember 1980s में ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था? ये सब कुछ शुरू हुआ था कि 1980s में रोनाल्ड रीगन ने और मार्गरेट थैचर ने अपनी इकोनॉमीज खोलनी शुरू कर दी थी, जिसको हम बोलते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं. कई जगहों पे आपको दिखाई देगा कि वॉशिंगटन कंसेंसस है, कई जगहों पे आप इसका नाम पढ़ोगे रीगनिज्म एंड थैचरिज्म, कई जगह पे पढ़ोगे कि न्यू लिबरल पॉलिसीज. अगेन क्लासिकल थॉट क्या कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, लेट मार्केट्स प्ले. तो वो जो फिलॉसफी थी जिसमें मार्केट्स को पूरा रोल दे दिया गया था, बैंक्स को ऊपर फ्री अप कर दिया गया था, वो सब कुछ रोनाल्ड रीगन ने किया था. तो व्हाट यू सी इन रघुराम राजन्स रीडिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन 1980s में, वो किसके अंडर हुआ है? वो रीगन के अंडर हुआ है. तो उससे पहले बैंकिंग स्ट्रक्चर जो था यूएस में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट था. There was this Glass-Steagall Act of 1930s which restrained banks to not to indulge into risky activities. But उन सबको वायलेट करते हुए ये फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का जो नया फेज़ है वो रोनाल्ड रीगन के अंदर शुरू हुआ, which gave way to hyper globalization. Now under WTO, domestic economic management was to become subservient to international trade and finance rather than the other way around. So economic globalization was seen as integration of markets for goods and capital, but not labor, and it became an end in itself, overshadowing the domestic agendas. तो domestic agendas से को आपको बैकडोर पे कॉर्नरस्टोन आपको बैक बर्नर में रखना है. आपका मेन इंटीग्रेशन होना चाहिए गुड्स का एंड कैपिटल का. कैपिटल व्हेन आई मेक कैपिटल विच बेसिकली मीन फाइनेंस एज वेल, बट नॉट लेबर. क्योंकि लेबर का इंटीग्रेशन हो गया तो दैट मीन्स आप कह रहे हो कि इंडिया का बंदा इजीली जाके यूएस में काम कर सकता है, यूएस का बंदा इजीली जाके इंडिया में काम कर सकता है. सो व्हाट वाज नॉट एनविसाज्ड वाज फ्री लेबर मूवमेंट. So globalization became an imperative, and to pursue for globalization to be pursued, all countries had to have a common strategy of lower corporate taxation, tight fiscal policy, deregulation, reduction of power of trade unions. तो ये सारी चीज़ें थी. So the aim was to do better than what what GATT had done. So in a sense, GATT had become victim of its own success. Even these developing countries wanted at this point of time कि they wanted to become export base, कि अच्छा हमारी कंट्री से आके एक्सपोर्ट करो. And they were willing to, these countries were willing to kind of lower their national sovereignty in order to show themselves कि अच्छा हम अच्छा एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन हमारे अंदर आके सेटअप कर लो अपनी गवर्नमेंट.
And this was also during the era of, as I told you, free market economics, which was also called as Washington Consensus, market fundamentalism, or neoliberalism. Aim was that governments stood in way of markets. तो government was seen in poor light, that government जो है वो सिर्फ एक cost add करते हैं, and instead of being indispensable to the functioning of the markets, so their size had to be cut. एंड नाउ यूरोवे एग्रीमेंट में बातचीत होनी शुरू हो गई, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और जो आप पढ़ते हो, आई टॉट यू इन सर्विसेज रीडिंग, गैट्स के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, जनरल एग्रीमेंट ऑन मोड ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज में मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, तो वो सब कुछ इस यूरोगे राउंड में डिस्कस हुआ था. And there is another agreement on agriculture, which is a very important agreement. Unfortunately it's not in your course, but I do teach that for UPSC, जिसमें आप green box देखते हो. There's something called amber box, blue box and green box subsidies, कि वो कौन कौन सी सब्सिडीज़ होती हैं जो WTO अलाउ करता है, कौन सी सब्सिडीज़ जिनको कैप करना होता है, और कौन सी सब्सिडीज़ जो WTO अलाउ नहीं करता, बिकॉज दोज आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो MSP देता है, अगर इंडिया MSP दे रहा है अपने 23 क्रॉप्स के लिए अपने फार्मर्स को, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर आप ज़्यादा MSP दोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे. तो दिस इज़ अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी. ठीक है. सो बेसिकली इंडिया को इसको कैप करना, मतलब अगर इंडिया को अगर MSP दे रहे हो तो उससे आप अपना पब्लिक फूड स्टॉक तो बना सकते हो, बट उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसका वेवर इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है वीट के केस में, क्योंकि वीट का सप्लाई जो है इस वक्त शॉर्ट चल रहा है मार्केट में. जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, व्हाट is the most important part? The most important part is the comparison between GATT and WTO. How is WTO different from GATT, and WTO के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइडेड हैं. WTO जब WTO आया तो उसके अंदर एग्रीकल्चर में अग्रीमेंट आया, जिसमें आपको बोला कि इंपोर्ट कोटास को हटाएंगे एंड यू हैव टू कन्वर्ट योर कोटास इनटू टैरिफ्स एंड सब्सिडीज, और धीरे धीरे आपको ये कोटास, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज को खत्म करना है. और ये बिकेम द सेंटर स्टेज ऑफ वन ऑफ द अग्रीमेंट्स. दिस इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. देन मल्टी फाइबर अग्रीमेंट, जो हमने कोटा सेटअप कर रहे हुए थे, वो उसको हटा दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर न्यू अग्रीमेंट्स ऑन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. इसके अंदर कई सारे आते हैं. इसके अंदर पेटेंट्स आता है, इसके अंदर कॉपीराइट्स आते हैं, इसके अंदर इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स आता है, इसके अंदर नहीं, ट्रेड सीक्रेट्स आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है. ठीक है. तो बहुत सारी तरीके के आपके पास IPR राइट्स होते हैं. देन उसके अलावा देयर वाज आल्सो होमोजेनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स. एक एग्रीमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, SPS, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट, जिसमें आप बेसिकली सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्या होता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस इंडिया की फिशेज़ नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेते? स्पेशली इनलैंड फिशेज़, क्योंकि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं कि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो है वो अल्टीमेटली रिवर स्ट्रीम्स में चला जाता है. एंड देयर इज़ दिस कंसेप्ट इन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन. एंड उसकी वजह से हमारी जो फिशेज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेजिडू हो जाता है फर्टिलाइज़र एंड सब्सिडीज़ का. और इसीलिए ये जो है ये जो फिशेज़ हैं ये नहीं एक्सपोर्ट कर पाते हैं हम to European nations. Similar is the case with at times mangoes as well or other products as well. So this is because जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है ऑफ फूड वो हम फॉलो नहीं कर पाते. तो इसलिए इंडिया कई बार यूरोपियन यूनियन को भी कई बार इसके अंदर ले जाता है कि अच्छा आपने हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैन कर दिए बिकॉज ऑफ योर आर्बिट्री हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अनदर न्यू थिंग दैट वाज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेड डिस्प्यूट कैसे मैनेज होगा. ट्रेड डिस्प्यूट मैनेज करने के लिए यहाँ पर अपैलेट बॉडी है, और उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट का एक सेटलमेंट बॉडी है, जहाँ पर अगर कोई डिसीजन को रिवर्स करना है तो ईच एंड एवरी मेंबर शुड वोट अगेंस्ट इट. बट देन दैट डज नॉट मीन कि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेंदी है और कोई इसकी बात मानता भी नहीं है. ये आपकी SPS की बात आ गई. दैट SPS वॉज अ मेजर ऑफ WTO. अब इसमें एक केस बता रखा है कि कैसे क्या कहते हैं US जो है कुछ बीफ प्रोडक्ट्स बेचता था यूरोपियन यूनियन को
बट वो जो बीफ प्रोडक्ट्स है, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अच्छा आपके यहाँ जो हार्मोन्स, आप एक्सटर्नल हार्मोन ट्रीटमेंट देते हो अपने अपने बीफ का, तो बेसिकली यूएस के फार्मर्स और यूएस की कंपनीज क्या करती थी, हार्मोनल इंजेक्शन दे के अपनी जो काउज हैं उनको और ज़्यादा मोटा तगड़ा बना लेती थी, और जितना ज़्यादा मोटा तगड़ा होगा उतना ज़्यादा मसल्स होंगे, उतना ज़्यादा हैवी और उतना ज़्यादा प्रॉब्ली बेटर न्यूट्रिशन बीफ मिलेगा। तो ये बिकॉज आपने एक्सटर्नली कुछ इंजेक्शन दिए हैं, हार्मोनल चेंजेस करे हैं उस पर्टिकुलर एनिमल में, इसलिए यूरोप ने वो प्रोडक्ट बैन कर दिया। बट अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं घूम फिर के WTO के पैलेट बॉडी में है, जिसने रूल कर दिया कि जो यूरोपियन यूनियन की ने जो रूल्स निकाले हुए हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट वाले बीफ के, वो आर्बिट्री हैं और दे शुड अलाउ यूएस का इम्पोर्ट। बट वो चीज़ आज तक यूरोपियन यूनियन ने आज तक नहीं मानी है। तो यूरोपियन यूनियन हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद WTO रूलिंग्स, रिस्किंग रिटेलिएशन। सो बेसिकली रूल्स हैं बट कोई फॉलो नहीं करता कई बार। Then apart from that, there are two major conflicts in WTO. एक डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि आप एक नया अग्रीमेंट लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू WTO में 1999 के अंदर देयर वाज दिस न्यू एग्रीमेंट इन सियाटल, ठीक है, अगेन दिस समथिंग दैट वी टीच इन सिविल सर्विसेज कि सियाटल अग्रीमेंट क्या था और वो क्यों ब्रेक डाउन हो गया। तो सियाटल के अंदर हम बात कर रहे थे, यूरोगे, रिमेंबर यूरोगे 1994 1995 में ख़त्म हो गया। उसके बाद सियाटल में आपने WTO को और एक्सपैंड करने की कोशिश करी। अभी आपने क्या करा था, अभी आपने गैट्स ले आए थे, ट्रिप्स ले आए थे, दे समथिंग कॉल्ड ट्रिम्स, एंड यू हैड अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और SPS भी था जो इससे रिलेटेड ही है। तो आप कुछ सारे एग्रीमेंट्स तो ला चुके थे ऑलरेडी। अब आप WTO का एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, बट देर वॉज दिस डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशली रिलेटेड टू, अब क्या करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, लेबर स्टैंडर्ड, कॉम्पिटिशन लॉ, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को लेके करना चाह रहे थे, विच डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज डिड नॉट अग्री टू। एंड क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो वांटेड जापान एंड यूरोपियन यूनियन टू डिसमेंटल इट्स एग्रीकल्चर एंड सब्सिडीज, उसके ऊपर भी अग्रीमेंट नहीं हुआ। तो ये जो 1999 की जो सियाटल की जो टॉक्स थी ये फेल हो गई। बट देन 2004 में फिर से अग्रीमेंट्स हुआ, और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए थे खूब सारे, और प्रोटेस्टर्स ने टीयर गैस फेंक दी थी इन वेयर दिस कॉन्फ्रेंस वाज हैपनिंग। तो इसको कई बार टीयर गैस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। नाउ 2004 में ये जो फाइनल डिस्कशन हुआ कि WTO को और एक्सपैंड करते हैं, ये हुआ दोहा में। अब दोहा इज़ अगेन मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, कतर है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट ज़्यादा हो नहीं सकते। थियोक्रेटिक स्टेट है, तो थियोक्रेटिक स्टेट्स में क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स साथ क्या करते हैं ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए यहाँ पर नई तरीके की बात हुई कि अच्छा हम अब WTO को एक्सपैंड करेंगे, और उसका नाम दिया दोहा डेवलपमेंट राउंड या दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, DDA भी बात बोलते हैं उसको कई बार। और इसमें मेन फोकस दिया गया कि अच्छा हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, तो दे फोकस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन एग्रीकल्चर सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एटलीस्ट बोर्ड पे आ जाएं। तो ये तो हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बोर्ड पे तो आ गए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ अगेन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन फाइनली जब इनका नेगोशिएशन शुरू हुई, तो अगेन कुछ मेजर कंसेंसस नहीं निकला, और आज तक कंसेंसस नहीं आया। तो 2004 में ये शुरू हुआ, पर जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है उसका कंसेंसस आज तक नहीं हो पाया एग्रीकल्चर को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके। बीच में 2-3 अग्रीमेंट्स आए हैं, बट एग्रीकल्चर को लेके अभी तक नहीं आए हैं। सो there were this started a new phase of agricultural liberalization, but at the same point of time this agreement was not reached. US चाइना और इंडिया के साथ बीच में लड़ाई करने बैठ गया विद रिस्पेक्ट टू अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कि कहाँ पर आप इंपोर्ट बंद कर सकते हो, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, अगेन आपको ना अभी पढ़ा नहीं होगा, SSM स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होता है कि कब कंट्रीज़ जो है बैन कर सकते हैं इंपोर्ट्स, अगर उनको लगे कि यार बहुत ज़्यादा हमारी डोमेस्टिक कंट्री जो है वो फेस कर रही है इंपोर्ट्स, तो इन दैट केस दे कैन बैन इंपोर्ट्स। तो SSM ट्रिगर कर सकते हो कि अपनी कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए इंपोर्ट बंद कर सकते हो।
तो उसके ऊपर वो किस किस बेंचमार्क पे होगा, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, उसके ऊपर कभी वो नहीं बैठा, कभी भी अग्रीमेंट नहीं हुआ. सो इफ़ यू सी देर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर अंडर प्ले हेयर. एक है आपका शैलो इंटीग्रेशन विच was planned to be achieved under WTO with little domestic policy. एंड दूसरा है डीप इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड ग्लोबल रूल्स टू बिकम डोमेस्टिक रूल्स. तो ये होता है डीप इंटीग्रेशन कि आपने सारी की सारी कंट्री को इंटीग्रेट कर रहे हो टू व्हाट इज रिक्वायर्ड एट ग्लोबल लेवल. सो वेयर एज ब्रेटन वुड्स ट्राइड टू अचीव शैलो इंटीग्रेशन, WTO tried to achieve deep integration, and it is because of that this negotiation has been too slow, because every country has its own concern, and because of that this integration is very difficult to achieve. So there are these modern questions that where do rules from WTO come from, how can they be enforced, what will happen if different countries need different. अब इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब फार्मर्स हैं, अब अगर हम उन गरीब फार्मर्स से क्या हम प्रोक्योर नहीं करेंगे, तो इंडिया के लिए एक्सेप्शन बना. फिर बाली के अंदर 2017 के अंदर एक्सेप्शन बना कि चलो ठीक है, आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए आप ख़रीद सकते हो, आप MSP दे सकते हो. तो एवरी कंट्री हैड कुड हैव इट्स ओन कंसर्न्स. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम थिंग. And finally, again, an important part of this particular reading is the last 3-4 pages, which talks about the trade and wages and the impact of it on in the real world की ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ. सो ग्लोबलाइजेशन में जैसे पॉल क्रूगमैन जो है 80s 90s में ही वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि भैया फ्री ट्रेड होना चाहिए. बट जस्ट बिफोर ही वन हिज नोबेल प्राइज इन 2009 आई गेस, उससे पहले ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही सेड दैट नो, what I've also realized is that there are multiple effects of globalization. उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी भी हो सकती है. इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट. ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, उसके मल्टीपल शेड्स हैं, और इट कैन ऑल्सो लीड टू इनकम इनइक्वालिटी. एंड अगेन द थिंग इज़ दैट ग्लोबलाइजेशन की वजह से वन ऑफ द कल्प्रिट्स कुड बी द स्किल बायस्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज. और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्किल्ड हायर वर्कर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वेराज जो लेसर एजुकेटेड है उनको पैसे कम मिलेंगे. जो मैंने आपको बताया था, जो दूसरी रीडिंग के अंदर भी है, इस वाली रीडिंग के अंदर भी बात कही गई है कि आपका जो स्किल गैप है उसकी, और स्किल प्रीमियम बोलते हैं उस रीडिंग के अंदर, स्किल प्रीमियम. तो जो स्किल प्रीमियम है, अगर आपके पास स्किल प्रीमियम है तो आपको अच्छा पे किया जाएगा, और अगर आपके पास स्किल प्रीमियम नहीं है तो नहीं अच्छा पे किया जाएगा. And what he had said that post 1990s what we have seen is that US के अंदर imports जो हैं वो डबल हो गए हैं, and their own producers जो हैं they are not able to compete with the rest of the world. So this basically made him change his line of thought कि not all is well with globalization. And Krugman was not the only one who had this change of heart. Even Larry Summers, who was was a famous economist in US and was also one of the directors of Harvard. He also was a staunch believer of free trade, and by 2008-2009 he was also saying that that free trade is not ideally good for working people. उनकी wages पे impact पड़ रहा है, उनकी wages गिर रही हैं, उनकी wages stagnate कर रही हैं. So this was again one of the views which was given कि globalization की वजह से जो सर्विस क्लास है, जो पुअर क्लास है, उनकी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड रिटन इन अमेरिकन कंटेक्स्ट आगे जाके और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि से समथिंग लाइक सर्विसेज. और कोविड के बाद, तो अगर कोविड के बाद देखो तो बहुत सारी चीज़ें वी हैव रियलाइज्ड कि यूएस की इकोनॉमी में की बजाय इंडिया से आप हायर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप हेल्थ के लिए इंडिया से डॉक्टर हायर कर सकते हो, लॉ के लिए इंडिया से लॉयर हायर कर सकते हो, एजुकेशन के लिए इंडिया से हायर कर सकते हो teachers. So now all of that has changed. To give you just a small example, now I am also teaching. There are some students from college, from Gargi College, जो अब डेटा साइंस के अंदर चले गए, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स एज वेल. और वो यूएस से couple of students are in UTD, one of them is in George Washington University, and they are doing data science courses. अब उनको वो चीज़ वहाँ पर समझ नहीं आ रही,
एंड नाउ दे टेक, आई गिव देम क्लासेस जस्ट ऑन डेटा साइंसेस. तो उसकी वजह से आई एम काइंड ऑफ टेकिंग दीज प्राइवेट क्लासेस फॉर देम बेस्ड ऑन देयर कोर्स. तो अगेन यहाँ पर अब आपकी क्लासेस वहाँ की बजाय आई एम गिविंग देम क्लासेस फ्रॉम इंडिया. So this is an example, this is again an example of how services and medicine in case of lawyers अब और भी ज़्यादा ये जो नेशनल बाउंड्रीज हैं ख़त्म हो गई हैं हाइपर ग्लोबलाइजेशन में, और उसकी वजह से और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर. So thanks to information technology, previously considered safe jobs such as medical, education services, financial services are increasingly moved offshore at cheaper whereas people like Jagdish Bhagwati says that boss, don't this argument of ki free trade की वजह से there are large number of losers, there is inequality and dislocation especially with low income जो low income country generate करती है. So he says that जो भी problem आ रहा है you cannot use trade policies to counter it. What you should use is use domestic policies. Identify who is on the wrong end of globalization. Identify that person and compensate that person in terms of say wages, in terms of job security. Whatever you want to do, you create those incentives so that आप freer trade कर पाओ, but the losers are compensated wherever they are located. So the problems that trade creates should not be solved by protectionism but through domestic policies that compensate the losers. This is a fine idea, but identifying them and compensating for their fall is a difficult task altogether. So this is all about this particular reading. इसके अंदर आप reputation वाली चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई वो भी आप ऐड कर सकते हो. By the way, वो reputation वाली जो चीज़ है मैंने वो इस रीडिंग से उठाई है. ठीक है, आई पिक्ड अप फ्रॉम जो सेकेंड आर्टिकल है यहाँ पर उससे हटा है कि क्यों कंट्रीज़ रीलोकेट करने के बाद भी उनकी वेजेस जो हैं वो गिरती क्यों नहीं है. दिस प्रणब बर्धन का जो द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द पुअर, आई पिक्ड अप द रेपुटेशन वाला कंसेप्ट है. सो यू कैन मिक्स एंड मैच, यू कैन प्रॉब्ली राइट दैट एज वेल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रीडिंग. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, एट लीस्ट इन माई ओपिनियन. I think you should definitely prepare for this as well as Raghuram Rajan. Rest, if you still want to read the other 2 chapters, you can go ahead and read it. I've given you a small brief of those chapters as well. So all the best guys, and since this is your last session, I will wish you a very happy farewell, and I will be calling you in the next couple of days जो भी UPSC देना चाहते हैं. Fortunately this year the topper of IAS is from economics optional. So we'll be discussing a lot of things about economics optional and UPSC in a physical meeting. So I will send you the link कि कहाँ पर है physical meeting होगी, and one in South Campus, the other will be in North Campus. But जो भी UPSC भी नहीं कर रहा, अगर ऐसे ही आके मिलना चाह रहे हो, you can always come and drop by. You'll get hold of कि कौन किस कॉलेज में है, क्या क्या कर रहा है. So I'll put it on the coordination group of the university. You are more than welcome. Fine folks, all the best for your examination. Thank you very much and see you on the other side. Bye. Good night.